welcome to the Learning Point. Today we will discuss the first chapter of class 9th, which is number system. So without wasting the time, let's start the chapter first, which is number system. Firstly, to do this chapter, introduction is very important. Firstly, natural numbers. Natural numbers are starting from 1 and up to so on, 2, 3, up to so on, they go to infinity. We can't count the natural numbers. Okay. Secondly, whole number. Whole numbers are starting from 0 up to so on, up to infinity. So we can say that whole numbers is also known as natural numbers, but all the natural numbers are not whole numbers, because in whole numbers there is 0, but in natural numbers 0 is not included. Now the third is integers. Integers contain the positive numbers, 0 and negative numbers, but in particular order, from minus infinity to infinity. We can express it on number line as 0, 1, 2, 3, so on up to infinity, and minus 1, minus 2, minus 3, up to minus infinity. Okay, these are integers and shown on the number line. Now the fourth is rational numbers. Rational numbers are the numbers which are in the form of p by q, where q is not equal to 0. Because if q is equals to 0, then it is not defined. Okay, so in this form we can say like 5 by 4. Now the fifth is irrational numbers. Irrational numbers. Irrational numbers are not expressed in p by q form. These are mostly the numbers which contain roots, cube roots, square roots, like example under root 5 and under root 3. Okay, and the sixth is real numbers. Real numbers are those which contain all the numbers, where it is integers, natural numbers, whole numbers, rational, irrational, and all the numbers which have decimals. We can define it as real numbers include all rational and irrational numbers. So मैंने यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन बता दी है. वो आगे जो भी एक्सरसाइज में मोस्टली यूज़ हो गए पॉइंट्स, वो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, फिर एक्सरसाइज पे हम मूव ऑन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो नाउ वन थिंग मोर, देयर इज द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स. डेसिमल एक्सप्रेशंस of rational numbers. We can choose it by two parts, or we can say they are of two parts: terminating and non-terminating. Terminating and non-terminating. Terminating में क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल से आपको बताते हैं. 3/2 है हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6.5 लाइक आंसर आता है. इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग में अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो है पॉइंट के बाद आगे डिजिट्स आते तो हैं बट रिपीट नहीं होते. तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग. ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज व्हाट, लाइक वी कैन टेक एग्जांपल 3. नॉन टर्मिनेटिंग 10/3 हमने एग्जांपल ली है इसकी. इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 3.3333 रिपीट होता जाता है. जैसे कि इसका नेम है नॉन टर्मिनेटिंग. हमें नेम से लग रहा है कि ये नॉन रिपीटिंग हो गए, बट नो, दीज आर रिपीटिंग अगेन अगेन. बिकॉज इफ हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या है, 3.333 अप टू सो ऑन. सो इसको जो हमारा डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बार से. 3.3 we can write this as this also, 3.3 बार, इसको बार कहते हैं. ओके, सो हम अब क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड. सो लेट्स मूव. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
इसमें हमने क्या करना है, लेट्स टेक अ क्वेश्चन विच इज़ 36/100। हमने इसे डेसिमल एक्सप्रेशन में शो करना है और बताना है कि जो ये था ना पीछे हमने किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कि इन दोनों में से कौन सी टाइप है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। So now it is equals to, if we divide it, the answer we get is 0.36 normally. अब देख सकते हैं क्या है, जहाँ डिजिट्स जो है रिपीट नहीं हो रहे, 36 मतलब इतना हमारा पार्टिकुलर आंसर आ गया है। इसके बाद हमारा रिमाइंडर मतलब 0 हो गया, तो हमने आगे डिवाइड ही क्या करना है ना, ऑब्वियसली। तो ये क्या आया, टर्मिनेटिंग, बिकॉज क्या है, नॉन रिपीटिंग। ओके, ऐसे ही हम टर्मिनेटिंग की एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको हम सिंपल में कर लिया। ओके, सो वी डिवाइड इट, वी गेट 4.125। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ टर्मिनेटिंग। ओके ओके, बिकॉज टर्मिनेटिंग क्यों है, बिकॉज कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ओके, नाउ विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग 1/11 लाइक। ओके, क्या है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.090909। आप डिवाइड करके देख सकते हैं हमारा ये आंसर आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली आगे आगे ऐसे ही आता जा रहा है। ओके, सो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था कि हम इसको जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो सारे डिजिट पे हम बार डालकर उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। सो ये क्या हो गया है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, 3/13 है, जैसे कि इसका आंसर मेरा आ रहा है 0.230769,230। यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं 230 यहाँ से फिर से सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी क्या आया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। Okay, I hope you will clear this concept. Now we'll move to the next concept. So now the second type of questions are, ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमें रैशनल फॉर्म में गिवन था, हमने इनको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बताया था। अब हमें नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कोई भी फॉर्म गिवन है, हमने उसे रैशनल p/q की फॉर्म में क्या करना है, उसका आंसर लाके उसे बताना है कि क्या बन रहा है। ओके, सो नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, 0.6 पे बार है। ओके, सो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं पेपर्स में जरूर आते हैं, सो अच्छे से समझना, और वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। सो नाउ वी कैन राइट इट ऑल्सो एज 0.6666 अप टू सो ऑन, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि बार क्या होती है, वो डिजिट रिपीट होता है मैनी टाइम्स। ओके, मार्क इट एज द फर्स्ट इक्वेशन। Okay, now multiply this first equation both sides by 10. Okay, we get what, x into 10 is equals to 0.666 up to so on into 10. We can write it out also as 10x is equals to 6.66 up to so on. Mark it as equation 2. So now to take a particular answer, subtract the second equation and first equation. Okay, 2 में से हमने 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6.66 अप टू सो ऑन माइनस 0.66 अप टू सो ऑन। ओके, 10 में से x 9x आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, 6, कैसे, 6.666 अप टू सो ऑन था, तो इसमें से हमने 0.66 तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला पीछे वाला सारा सब्ट्रैक्ट हो गया, इसमें से हमारे पास क्या बचा, 6 ओनली। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 6/9, जहाँ तक ठीक है। अब x इज इक्वल्स टू 2/3 भी राइट कर सकते हैं, कटिंग हो गई है। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 2/3 is our final answer in the form of p/q. Let us take another example. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं ये भी आपको करवा रही हूँ कि ऐसे ही सम्स हो सकते हैं। ओके, इस पे भी हमने सेम जो सारा प्रोसेस है, मैथड है, वो सारा बिल्कुल सेम है। ओके,
थोड़ा सा डिफरेंस है, x इक्वल्स टू हमने 0.001 लेट कर लिया है और हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं up to so on, mark it as first equation same. Now multiply this first equation by 1000 on both sides. 1000 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है यहाँ पर, बिकॉज इफ हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते तो 0.01 आना था, मतलब x के आगे है ना, यहाँ पर जो है अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, तो फिर तो पॉइंट तो वो फिर से रह जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स पर बार है और जो हमारा 1 है वो तभी कवर होगा अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1000 से करेंगे तो तभी पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसलिए हमने इसको 1000 से जो है मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो नाउ वी गेट व्हाट 1000x इज इक्वल्स टू 1.001001 up to so on, mark it as the second equation. Okay, now subtract these two equations, we get what 1000x minus x is equals to this. Okay, so there is the 999x which is equals to 1. How 1 because यहाँ पे 1 पॉइंट ये सारा था हमारे पास, इसको हम अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ओनली 1 आंसर बचेगा एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 1/999। दिस इज द फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ PYQ विच वी हैव टू फाइंड आउट आंसर। एज यू ऑल नो CBSE का कुछ सिलेबस है जो वो रिड्यूस हो गया, डिलीट हो गया है, तो मैं सारी एक्सरसाइजेस कवर अप नहीं कर रही हूँ, आपके सिलेबस में जो इंक्लूड है मैं वही डाल रही हूँ। तो अगर किसी को एक्स्ट्रा चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ यहाँ पे हमने रूट्स वाले कुछ इक्वेशंस हमें गिवन होगी, हमें उनको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो इससे पहले आपको सम पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे कैसे हम रूट्स को सिंप्लीफाई डिफरेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब में। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, √AB अगर हमारे पास ऐसी फॉर्म का कुछ भी होगा तो उसको हम √A इंटू √B ऐसे भी राइट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, 2 इंटू 3 है मीन्स 200। नाउ इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं √2 इंटू √3। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज √A/B विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू A/√B। ओके, मीन्स हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, रूट सेपरेट किया है जस्ट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज आपको फॉर्मूला तो पता होगा A² माइनस B² का किसकी इक्वल होता है, A माइनस B इंटू A+B। नाउ इस फॉर्मूले को यूज करना है हमने रूट्स में। ओके, रूट्स में नाउ इफ वी हैव गिवन दैट √A प्लस √B इंटू √A माइनस √B, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस फॉर्मूला √A का स्क्वायर माइनस √B का स्क्वायर। सो स्क्वायर से दिस कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A माइनस B। ओके, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज अगर सिर्फ एक पे अंडर हो, ओनली B पे और ओनली A पे। ओके, A माइनस √B इंटू A प्लस √B इस फॉर्म का। ओके, तो A² माइनस B का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया तो फाइनल आंसर इज A² माइनस B। एंड द थर्ड पॉइंट इज √A माइनस B √A प्लस B, इसको हम ऐसे भी राइट आउट कर सकते हैं, √ से स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया और B² विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू A माइनस B² विच इज अ फाइनल आंसर। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। सो नाउ स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3। फर्स्टली जब दो ब्रैकेट्स ऐसे डाली होती हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि 3 को पहले सारी ब्रैकेट के साथ, देन √3 को सारी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 2 प्लस √2 प्लस यहाँ पे साइन कौन सा आता है, जो यहाँ पे होता है। ओके, अगर माइनस हो तो हम माइनस डालते, √3 2 प्लस √2। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको फर्स्ट से देन सेकंड से, मीन्स वी गेट
3 टू ज़ा 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस, ये हमने पीछे की थी, एक पॉइंट किया था ना कि दो अगर हो हमारे पास ए बी, उसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, और ये तो ऐसे हैं तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट 6. ओके, सो नाउ दिस इज अ आंसर बाय, बिकॉज ये और सिंपलीफाई हो नहीं सकता. यहाँ पे अंडर 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर 2 पर अंडर रूट 3 हम ऐड नहीं कर सकते. हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर अंडर रूट वाली टर्म सेम हो. अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 होता तो मैं 2 और 3 को ऐड कर सकती थी, अदरवाइज नहीं. सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया. ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अंडर द रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर. यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में यूज हो सकती है. एक माइनस की भी होती है, उसमें यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे माइनस होता है. ओके, सो फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम a की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं. a इक्वल्स टू अंडर रूट 5 हियर एंड b इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट 2 हियर. ओके, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला. अंडर रूट 5 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. सो नाउ स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास? 5 प्लस 2 प्लस 2 अंडर रूट 10. सो इन दोनों को ऐड कर देंगे. 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 इज अ फाइनल आंसर. ओके, so let's start with the next topic of the questions, which is rationalize the denominators. okay, form of questions कैसी है यहाँ पे हमारे पास? 1 by अंडर रूट 7, इसीलिए इसका जो नेम है मेनली rationalize the denominators है. क्यों? बिकॉज जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको हम सिंपली कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, और कोई मेथड नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने का जिसपे अंडर रूट जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ठीक है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा. पहले मैं सिंपल से बता रही हूँ, फिर हम इससे थोड़ी डिफरेंट भी करेंगे. अंडर रूट 7/7 ऐसे हम इसको रैशनलाइज करते हैं. नाउ इस मल्टीप्लीकेशन में तो ये तो आपको आती होगी. सिंपली हमने मल्टीप्लीकेशन किया इसको, अंडर रूट 7/7 आ गया. कैसे आया 7? अंडर रूट जो था मतलब कैंसिल आउट हो गया, मीन्स कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जो होता है उसका आंसर 3 होता है. सेम ऐसे ही अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 का आंसर क्या हो गया? 7 हो गया. ठीक है, अगर फिर भी नहीं आपको पता चल रहा तो हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि अंडर रूट 7 का जो है स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और हमारा ये आंसर आ गया. ओके, so this is our final answer of this question. Now we'll take the next example, which is 1 by अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर हमारा माइनस होगा तो हमने रैशनलाइज करते हुए यहाँ पे प्लस का साइन डालना है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन डालती. ओके, सो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज करना है. कौन सा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला कहाँ यूज होगा? यहाँ पे, बिकॉज ये बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी. ओके, सो वी विल गेट व्हाट? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6. और यहाँ पे क्या हुआ? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 1. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज, ये एग्जाम्पल थोड़ी सी डिफरेंट है इसलिए मैं आपको ये भी सॉल्व करवा रही हूँ, बिकॉज इसके न्यूमिनेटर में भी हमें कुछ गिवन है. 5 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 हमारी इक्वेशन है. ओके, सो सोल्यूशन इसका 5 प्लस अंडर रूट 3 7 माइनस 4 अंडर रूट 3. हम इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? अपर वाली टर्म जो होती है उसको कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर को ही ऑलवेज रैशनलाइज करना होता है. यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे? साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को डिनोमिनेटर से. ओके, सो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी
which is equals to a square minus b square. Okay, so we get what? 5 plus under root 3 into 7 plus 4 under root 3 divided by 7 square minus 4 under root 3 square, which is equals to, हमने क्या करना है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व आउट करना है. 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इससे करेंगे, देन सेकंड को ऐसे. ओके, 5 7 35 प्लस 20 अंडर रूट 3 प्लस 7 अंडर रूट 3 प्लस 4 इंटू 3. ये कैसे आया, यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा. एंड 7 अंडर रूट 3. नाउ अगर अंडर रूट 3 को 4 अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 3. सो ये आ गया. ओके, नाउ डिवाइडेड बाय 7 7 49 माइनस 4 4 16 इंटू 3 का स्क्वायर किया 3 आ गया. तो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनी, 35 माइनस 20 अंडर रूट 3. ये को यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर रूट 3 है दोनों इक्वेशंस में. सो क्या होगा, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं. वी गेट व्हाट, 27 अंडर रूट 3 प्लस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 3 48. ओके, वी गेट व्हाट, 35 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो देयर इज 47 प्लस 27 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1. सो 47 plus 27 under root 3 is a final answer. So now let's move to the next topic or next exercise, which is of laws of exponents. Now there are some exponential formulas here, which is as पहले मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ एक्सपोनेंट्स के कैसे होते हैं. अगर a raised to power m इंटू a raised to power n हो, मीन्स बेस सेम हो किसी भी नंबर के, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. एंड सेकंड पॉइंट इज, अगर a raised to power m और a raised to power n दोनों डिवाइड हो रहे हो, अगर डिवीजन में बेस सेम हो मतलब, तो क्या होगा, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. एंड थर्ड इज, इफ दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सिंपली राइट कर सकते हैं. ओके, एंड द फोर्थ इज व्हाट, इफ a raised to power m and b raised to power m पावर सेम हो तो उसको हम कंबाइन भी राइट कर सकते हैं, ab raised to power m. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज a raised to power m by n. इसको हम a raised to power m हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a raised to power m into 1 by n. ओके, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू a raised to power m को रूट n. अब हमने ये कैसे राइट किया, आपको पता है अंडर रूट को हम लाइक अंडर रूट 2 हो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 raised to power 1 by 2. मीन्स ये n की फॉर्म में अगर हम राइट करें 2 raised to power 1 by n, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का जो रूट है nth रूट है, ये वाली चीज ये है और ये है जो ये है. ओके, मीन्स a raised to power m और 1 by n जो पावर है उसको हम रूट की nth रूट राइट करते हैं ऐसे. वैसे ये बहुत कम यूज होता है, बट यू हैव टू नो अबाउट दैट. ओके, दिस रिलेटेड क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी हैव 64 raised to power 1 by 2. इसको हमने 1 by 2 की पावर में मतलब एक्सप्रेस करना है. आपको पता है 8 8 64 होता है, ऐसे कर सकते हैं हम इसको, 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस. ओके, सो 8 इज अ आंसर. वाई, बिकॉज 2 की पावर 2 से जो कैंसिल होगी, बिकॉज हम इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं 2 by 2. सो दिस इज द आंसर. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज 32 raised to power 2 by 5. ओके, इसको हमने ऐसे अब एक्सप्रेस करना है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 2 to the 4, 2 to the 8, 2 to the 16, 2 to the 32. ओके, 32 हो गया ना कंप्लीट. तो ऐसे राइट कर लिया हमने.
2 की कितनी पावर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गए, इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल्स टू, हम इसको 2 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं और 4 भी राइट कर सकते हैं, विच इज आवर आंसर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज 1y 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 7। अब हमने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करनी है? जो मैंने बताई थी आपको, a बाई बी रेज टू पावर, अगर हमारे को m की फॉर्म हो तो उसको हम सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 1 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 3 रेज टू पावर 3 7, ऐसे रेट कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा? 1 बाई, और अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है? a रेज टू पावर m रेज टू पावर n हो तो हम कैसे कर सकते हैं? a रेज टू पावर m इंटू n। ओके, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हेयर? 3 रेज टू पावर 21, और वी कैन राइट इट एज 3 माइनस 21 रेज टू पावर माइनस 21, विच इज आवर फाइनल आंसर। सो नाउ क्वेश्चन इज 16 by 32. I can take 16 raised to power 3 by 4 and 32 raised to power 1 by 5. Okay, so now we will write it as the powers of 2 firstly. मीन्स छोटे से स्टार्ट करेंगे हम, मीन्स हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। ओके, डिवाइडेड बाय रेज टू पावर डालना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, जो आपने देख लेना है काउंट करके कि कहाँ पे आपका 32 बन रहा है। ओके, वहाँ तक 2 राइट करने हैं। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32। ओके, सो मीन्स हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 रेज टू द पावर 3 by 2, सॉरी 3 by 4, 2 रेज टू पावर 5 1 by 5। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे? देखो 2 4 इंटू 3 by 4 हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 1 by 5 ऐसे भी राइट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आइडेंटिटी है a रेज टू पावर m द n हो, उसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ओके, सो 4 by 4 कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल हो गया 5 के साथ 5, तो क्या बचा? 3 2 रेज टू पावर 3 एंड 2। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? एक पावर इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी, मीन्स हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 बच गया। ठीक है, तो इसको हम 2 रेज टू पावर 2 भी लिख सकते हैं, बट हम पावर्स में नहीं, हमने तो सिंप्लीफाई करना था, तो आंसर क्या आएगा? 4 इज द आंसर। So now guys, our chapter is completed. If you like my video and understand all the concepts, then please like, share and comment and share with your friends. Don't forget to subscribe my channel for the more related videos and concepts. Thank you very much for watching.